जी अस्सलाम वालेकुम। इसी लेक्चर जो 1 था उसके पार्ट 2 में आपको वेलकम करता हूँ मैं। तो हम थे एज ऑफ द यूनिवर्स एंड मेथड्स टू डिटरमाइन इट। उसके मेथड्स हम डिस्कस कर रहे थे कि एज ऑफ गैलेक्सीज फ्रॉम द ट्रेवल टाइम ऑफ लाइट। तो ये जो होती है डिस्टेंस गैलेक्सीज जो होता है वो रेड शिफ्टेड होता है। ये रखें आप याद कि लाइट फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सीज इज रेड शिफ्टेड। Age of the universe from expansion. An alternative approach to estimating is the age of universe, and alternative approach to estimating is the age of universe is to measure the Hubble constant. एक हबल कांस्टेंट होता है, वही मेजर करता है एज ऑफ यूनिवर्स को। The Hubble constant is a measure of the current expansion rate of the universe. हबल कांस्टेंट मेजर करता है करंट जो एक्सपेंशन रेट होता है यूनिवर्स का उसको। अगर यूनिवर्स फ्लैट एंड कंपोज्ड मोस्टली ऑफ मैटर देन द एज ऑफ यूनिवर्स इज 2/3h. h is Hubble constant. If the universe has a very low density of matter, then its ex- extrapolated age is a larger 1/h. h same Hubble constant. तो ये दो तरह के मेथड्स थे जिस तरह से हम एज ऑफ यूनिवर्स एंड मेथड्स टू डिटरमाइन इट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स। एवरीथिंग इज वेल एक्सप्लेन्ड इन द पिक्चर, but one by one we will discuss about the composition of universe. Dark matter or ordinary matter are the atoms. Dark matters atoms are the dark energy atoms. So one by one we are going to discuss about them. Composition of the universe. Dark matter. Galaxies, you know very well, galaxies are rotating with such speed that the gravity generated by the observable matter could not possible hold them together. So they should have torn themselves long ago. This leads scientists to believe that something we cannot see at work. They think something we have yet to detect is directly giving these galaxies extra masses, generating the extra gravity they need to stay intact. This strange matter was called as dark matter since it was not visible. This is the basic concept of dark matter. To put it simple, what are the characteristics or the features of dark matter? Unlike normal matter, आप अगर मैं डार्क मैटर की चीज़ें बताता जाऊँ तो आप अपोजिट बात करें तो वो नॉर्मल मैटर्स जो होते हैं उनकी बात होगी। Unlike normal matter, it does not interact with the electromagnetic force. तो जो नॉर्मल मैटर होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से क्या होते हैं, इंटरेक्शन करते हैं वो, जबकि डार्क मैटर नहीं करते। डार्क मैटर डज नॉट absorb, emit, or reflect sunlight. Scientists, scientists are able to infer its existence only from the gravitational effect. Places with concentration of dark matter bend light passing nearby, interact with gravity. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लेसेस विद कंसंट्रेशन ऑफ डार्क मैटर, वो प्लेसेस जिधर कंसंट्रेशन ऑफ डार्क मैटर ज़्यादा होती है, बैंड्स लाइट पासिंग नियर बाय, लाइट बैंड्स की फॉर्म में पास होती है। क्योंकि वो इंटरेक्ट करती है विद ग्रेविटी। इट सीम्स टू आउटवे विजिबल मैटर रफली 6 to 1, मेकिंग अप अबाउट 27% ऑफ द यूनिवर्स। एक पिक्चर है नीचे जो आपको डार्क मैटर इजीली विजिबल होंगे और इजीली वो आपको नज़र आ रहे होंगे। डार्क मैटर इस तरह से बनते हैं और डार्क मैटर की जो भी इस तरह से उसके फीडर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डार्क एनर्जी। डार्क मैटर ये थे, ठीक है। तो डार्क जो एनर्जी होती है, इन 1929 एडवर्ड हबल एक्सप्लेन हाउ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड बाय द डिस्टेंट गैलेक्सीज shifts towards the red end of the electromagnetic spectrum
He found it that he found it that fainter, more distant galaxies showed a larger degree of redshift. Closer galaxies, not so much. It is very important thing which we are discussing here. Hubble determined that this was because the universe itself is expanding. Wherever there is empty spaces in the universe, more is forming every second. So dark energy is some kind of energy intrinsic to empty spaces. So dark energy is some kind of energy intrinsic to empty spaces, feathers of dark energy. It makes approximately 68% of the universe and appears to be associated with the vacuum in space. ये बात तो ऑलरेडी हमने डिस्कस की है कि यूनिवर्स में 68% पे होती है डार्क एनर्जी और ये अपीयर होती है जो भी स्पेसिस वैक्यूम होती हैं खाली होती हैं यूनिवर्स के अंदर उधर इट इज़ evenly distributed throughout the universe. Even distribution means that the dark energy does not have local gravitational effect but rather a global effect on the universe. This leads to repulsive force which tends to accelerate the expansion. नेक्स्ट है हमारा आइडियल्स टू एक्सप्लेन डार्क एनर्जी. आइडियाज़ बहुत से होते हैं डार्क एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए. ये एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, हैज़ इट्स ओन एनर्जी. एम्प्टी स्पेसेस उनकी अपनी ओन एनर्जी है जिसको आप डार्क एनर्जी बोलते हैं. आइडिया ऑफ आइंस्टाइन इन 1917 क्या था? आइडिया ऑफ कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट आर अ फोर्स दैट काउंटर एक्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसको आप डार्क एनर्जी बोलते हैं. अगर वर्चुअल पार्टिकल्स की बात की जाए तो आइडिया ऑफ वर्चुअल पार्टिकल्स क्या कहता है कि फॉर्म फ्रॉम नथिंग एंड देन डिसअपियर इनटू नथिंग अगेन इन एम्प्टी स्पेसेस. The energy from those particles could be dark energy. The energy from those particles जो फॉर्म होते हैं फ्रॉम नथिंग एंड देन डिसअपियर फ्रॉम नथिंग अगेन, तो वही जो एनर्जी उन्हीं की होती है पार्टिकल्स की आर कॉल्ड एज डार्क एनर्जी. इट इज़ अननोन काइंड ऑफ एनर्जी, फ्लूइड आर फील्ड. नेक्स्ट हमारा ब्लैक होल. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रहा है हमारा. इट इज़ अ प्लेस इन स्पेस where gravity pulls so much that even light cannot get out. क्या है ये? स्पेस है ये यूनिवर्स की वो हम कहें स्पेस से ग्राउंड है जो लाइट पास नहीं हो सकती. बिकॉज क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज नो लाइट कैन गेट आउट, पीपल कैन नॉट सी ब्लैक होल. टाइप्स ऑफ ब्लैक होल. ब्लैक होल इक्वल टू साइज ऑफ एन एटम हैज़ मास ऑफ अ लार्ज माउंटेन. एटम बड़ा ही इनविजिबल पार्टिकल होता है जो नज़र नहीं आता. तो ब्लैक होल भी यूनिवर्स के अंदर ऐसे ही होता है जो विजिबल नहीं होता मगर ये ज़्यादातर मौजूद होता है. स्टेलर जो होता है हैज़ मास 20 टाइम्स मोर देन द मास ऑफ सन. सुपर मैसिव दूसरा है ब्लैक होल का टाइप, हैज़ मास मोर देन 1 बिलियन सन्स टुगेदर. 1 मिलियन सन्स जब आपस में मिलते हैं तो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बनता है. सिंगुलरिटी का कंसेप्ट ऑलरेडी वी डिस्कस्ड. इवन हॉरिजन. A singularity or gravitational singularity is a point at the very center of a black hole. It is a one-dimensional point that contains enormous amounts of mass in a infinity small space. Event horizon. Event horizon क्या चीज़ है? A black hole's event horizon is its outermost boundary. क्या ब्लैक होल का एक इवेंट हॉरिजन होता है? वो कौन सा होता है? वो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसी की. इट इज़ अ पॉइंट एट विच द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रिसाइसली ओवरकम्स light's ability to escape the black hole's pull. This is a point of no return. ये एक point of no return भी है, important point है, beyond which it is impossible to escape the gravitational effects of the black hole. ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स कैसे होती है या लाइफ ऑफ अ मैसिव स्टार, एक मैसिव स्टार कैसे है?
स्टार्स मोर देन 6 टाइम्स आर मैसिव एज अवर सन आर कॉल्ड मैसिव स्टार्स। वो स्टार्स जो 6 टाइम्स से ज़्यादा मैसिव होते हैं सन से, उनको हम मैसिव स्टार्स बोलते हैं। A massive star has short lifespan than the sun or the other low mass stars. ये जो मैसिव स्टार होता है, ये करेक्टरिस्टिक्स मैसिव स्टार्स की मैं बताता चलता हूँ, मगर इन्हीं से फॉर्मेशन होते हैं ब्लैक होल्स। ये एक जो मैसिव स्टार होता है, उसकी जो लाइफ होती है वो सन से कम होती है, और जो स्टार्स होते हैं लो मास के, उनसे भी कम होती है। Hydrogen in the core of a massive star is used up with a much fast speed. हाइड्रोजन इसी के अंदर मैसिव स्टार के अंदर होती है, जो स्पीड के लिए यूज़ होती है। आफ्टर ओनली 15 to 100 million years, no hydrogen is left in the core of a massive star. 50 या 100 मिलियन ईयर के बाद जो हाइड्रोजन के अंदर, वो जो मैसिव स्टार होता है उसी के अंदर हाइड्रोजन ज़्यादा नहीं रहती। एट दिस टाइम the core collapse and the star becomes 1000 times greater than its original size. अभी बात समझ आ जाएगी आपको। और दिस इज़ नाउ कॉल्ड ए सुपर गैंट। इसी को हम अब सुपर गैंट बोलते हैं। With the passage of time, the supergiant becomes so dense that it cannot bear the pressure of outer layers. ठीक है, तो वो जो सुपरगेंट होता है वो इतना बड़ा बन जाता है, इतना डेंसियर हो जाता है, जो बाहर का प्रेशर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता आउटर लेयर्स का। द आउटर लेयर्स क्रैश इनवर्ट्स। जो आउटर लेयर्स होती हैं वो अंदर की तरफ क्रैश होती हैं विद द ट्रेमेंडियस एक्सप्लोशन कॉल्ड सुपरनोवा। एट द टाइम ऑफ सुपरनोवा, द लाइट ऑफ द स्टार बिकम्स मच मोर देन ऑल अदर स्टार्स ऑफ द गैलेक्सी। ठीक है, greater shells of gases fly off the star, only the tiny core of the star remains left. The core contains only neutrons, so it is called as neutron star. ठीक है, it is extremely dense. Sometimes after the supernova explosion, the massive star becomes a black hole. ठीक है, इधर ही ब्लैक होल बन जाता है। कब? जब आपका सुपरनोवा एक्सप्लोशन करता है या एक्सप्लोड होता है, तो वो ब्लैक होल में होता है। ब्लैक होल इज अ सो डेंस दैट नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम इट ड्यू टू इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी। Even light cannot escape from a black hole, and it is no more growing. In fact, the black hole is the last stage of the life cycle of a massive star. ठीक है, तो फॉर्मेशन ब्लैक होल की कैसे होती है, लाइफ ऑफ अ मैसिव स्टार कैसे होती है, वो हमने डिस्कस किया बड़े ही सिंपल अल्फाजों में। नेक्स्ट हमारा ब्लैक होल। व्हाट कुड बी इनसाइड अ ब्लैक होल। ब्लैक होल के इनसाइड क्या होता है? ठीक है, बिटवीन द इवेंट हॉरिजन एंड द सिंगुलरिटी देयर इज नथिंग बट एम्प्टी स्पेस। इवेंट जो हॉरिजन होता है या सिंगुलरिटी होती है, उधर कुछ भी नहीं होता, खाली स्पेस के, सब्जेक्टेड टू द ट्रेमेंडियसली स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड। Once the hydrogen from the collapsed star went in, the theory of gravity tells us it got squeezed into the singularity at the center, and nobody knows what it's really like there, although it is certainly not hydrogen anymore. तो इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट कैसे होता है? ये मैसियर होता है, ठीक है, 87 गैलेक्सी का। द ब्राइट रिंग विजिबल इन ऑल ऑफ दीज इमेज इज द ब्लैक होल्स एक्सप्लोरेशन डिस्क, वेयर gas being sucked toward the center gets heated until it begins to grow. इस तरह से ब्लैक होल क्रिएट होता है, या हमारे प्रोसेस जो भी होते हैं ब्लैक होल की फॉर्मेशन के होते हैं। तो नेक्स्ट जो इट इज़ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ब्लैक होल को। ऑलरेडी स्टिमुलेशन it is the fundamental units of the universe. It is composed of hundreds of thousands of black hole की बात हो रही है ये, thousands of stars with the gases and dust. Classification of galaxies, तो हम गैलेक्सीज की जो क्लासिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।